ड्यूटोनॉमी 11 चैप्टर 12 चैप्टर पढ़ेंगे इंग्लिश में, किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। पवित्र आत्मा हमें सच्चाई का सामना करा, सच्चाई के समझने की वजह से हमारे अंदर से हर एक कमज़ोर अवस्था दूर हो जाएगी और परमेश्वर को चाहिए वैसा हम बर्तन बन पाएंगे। परमेश्वर के सामर्थ का इस्तेमाल हो पाएगा और परमेश्वर को महिमा मिलेगी। हम अपने आप को सरेंडर करते, पिता परमेश्वर हमें सीधे रास्ते दे और परमेश्वर खराई के रास्ते पर हमें स्थिर कर। नासरी यीशु मसीह के नाम में झूठ के रास्ते ख़त्म कर और झूठ की शक्ति और उसके ऊपर का विश्वास भी हमारे अंदर से ख़त्म कर जो हमारे रास्ते को कमज़ोर करते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। हम पढ़ेंगे ड्यूटोनॉमी 11 चैप्टर 12 चैप्टर, किंग्स जेम्स वर्जन में से हम पढ़ेंगे। Exhortation to obedience. A careful study is required in God's words. A blessing and a curse is set before them. First verse, therefore thou shalt love the Lord thy God and keep his charge and his statutes and his judgments and his commandments always. And know ye this day, for I speak not with your children, which have not known and which have not seen the chastisement of the Lord your God, his greatness, his mighty hand, and his stretched out arm, and his miracles and his acts which he did in the midst of Egypt, unto Pharaoh the king of Egypt, and unto all his land, and what he did unto the army of Egypt, unto their horses and to their chariots, how he made the water of the Red Sea to overflow them as they pursued after you, and how the Lord had destroyed them unto this day, and what he did unto you in the wilderness until ye came into this place, and what he did unto Dathan and Abiram, the sons of Eliab, the son of Reuben, how the earth opened her mouth and swallowed them up, and their households and their tents and all their substance that was in their possession in the midst of all Israel. But your eyes have seen all the great acts of the Lord which he did. Therefore shall ye keep all the commandments which I command you this day, that ye may be strong and go in and possess the land whither ye go to possess it, and that ye may prolong your days in the land which the Lord sware unto your fathers to give unto them and to their seed, a land that floweth with milk and honey. For the land whither thou goest in to possess it is not as the land of Egypt, from whence ye came out, where thou sowest thy seed and waterest it with thy foot as a garden of herbs. But the land whither ye go to possess it is a land of hills and valleys, and drinketh water of the rain of heaven, a land which the Lord thy God careth, for the eyes of the Lord thy God are always upon it, from the beginning of the year even unto the end of the year. And it shall come to pass, if ye shall hearken diligently unto my commandments, which I command you this day, to love the Lord your God and to serve him with all your heart, with all your soul, that I will give you the rain of your land in his due season, the first rain and the latter rain, that thou mayest gather in thy corn and thy wine and thine oil. And I will send grass in thy fields for thy cattle, that thou mayest eat and be full. Take heed to yourselves that your heart be not deceived, and ye turn aside and serve other gods and worship them, and then the Lord's wrath be kindled against you, and be shut up the heaven, that there be no rain, and that the land yield not her fruit, and lest ye perish quickly from off the good land which the Lord giveth you. Therefore shall ye lay up these my words in your heart, and in
your in your heart and in your soul, and bind them for a sign upon your hand, that they may be as frontlets between your eyes. And ye shall teach them your children, speaking of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt write them upon the doorposts of thine house and upon thy gates, that your days may be multiplied, and the days of your children in the land which the Lord sware unto your fathers to give them, as the days of heaven upon the earth. For if ye shall diligently keep all these commandments which I command you, to do them, to love the Lord your God, to walk in all his ways, and to cleave unto him, then will the Lord drive out all these nations from before you, and ye shall possess greater nations and mightier than yourselves. Every place whereon the soles of your feet shall tread shall be yours. From the wilderness and Lebanon, from the river Euphrates, even unto the uttermost sea, shall your coast be. There shall no man be able to stand before you, for the Lord your God shall lay the fear of you and the dread of you upon all the land that ye shall tread upon, as he has said unto you. Behold, I set before you this day a blessing and a curse. A blessing, if ye obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day, and a curse, if ye will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods which ye have not known. And it shall come to pass, when the Lord thy God hath brought thee unto the land whither thou goest to possess it, that thou shalt put the blessing upon Mount Gerizim, and the curse upon Mount Ebal. Are they not on the other side Jordan by the way, where the sun goeth down in the land of the Canaanites, which dwell in the Champion, where against Gilgal beside the plains of Moreh? For ye shall pass over Jordan to go in to possess the land which the Lord your God giveth you, and ye shall possess it and dwell therein. And ye shall observe to do all the statutes and judgments which I set before you this day. Chapter 12. Monuments of idolatry are to be destroyed. The place of God's service is to be kept. Blood forbidden. Holy things to be eaten in the holy place. First verse, these are the statutes and the judgments which ye shall observe to do in the land which the Lord God of thy fathers giveth thee to possess it. All the days that ye live upon the earth, ye shall utterly destroy all the places wherein the nations which ye shall possess served their gods, upon the high mountains and upon the hills and under every green tree, and ye shall overthrow their altars and break their pillars and burn their groves with fire, and ye shall hew down the graven images of their gods and destroy the names of them out of that place. Ye shall not do so unto the Lord your God, but unto the place which the Lord your God shall choose out of all your tribes to put his name there, even unto his habitation shall ye seek, and thither thou shalt come, and thither ye shall bring your burnt offerings and your sacrifices and your tithes and sacrifice and hew offerings of your hand and your vows and your free will offerings and the firstlings of your herds and of your flocks, and there ye shall eat before the Lord your God, and ye shall rejoice in all that ye put your hand unto, ye and your households, wherein the Lord thy God hath blessed thee. Ye shall not do after all the things that we do here this day, every man whatsoever is right in his own eyes, for ye are not as yet come to the rest and to
to the inheritance which the Lord your God giveth you. But when ye go over Jordan and dwell in the land which the Lord your God giveth you to inherit, and when he giveth you rest from all your enemies round about, so that ye dwell in safety, then there shall be a place which the Lord your God shall choose to cause his name to dwell there. Thither shall ye bring all that I command you, your burnt offerings and your sacrifices, your tithes and the heave offering of your hand, and all your choice vows which ye vow unto the Lord. And ye shall rejoice before the Lord your God, ye and your sons and your daughters, and your maidservants and your maidservants, and the Levite that is within your gates, for as much as he hath no part nor inheritance with you. Take heed to thyself that thou offer not thy burnt offerings in every place that thou seest, but in the place which the Lord shall choose in one of thy tribes, there thou shalt offer thy burnt offerings, and there thou shalt do all that I command thee. Notwithstanding, thou mayest kill and eat flesh in all thy gates, whatsoever thy soul lusteth after, according to the blessing of the Lord thy God, which he hath given thee. The unclean and the clean may eat thereof, as of the roebuck and as of the hart. Only ye shall not eat the blood, ye shall pour it upon the earth as water. Thou mayest not eat within thy gates the tithe of thy corn, or of thy wine, or of thy oil, or the firstlings of thy herds, or of the flock, nor any of thy vows which thou vowest, nor thy freewill offerings or heave offering of thine hand. But thou must eat them before the Lord thy God in the place which the Lord thy God shall choose, thou and thy son and thy daughter and thy manservant and thy maidservant and the Levite that is within thy gates, and thou shalt rejoice before the Lord thy God in all that thou puttest thine hands unto. Take heed to thyself that thou forsake not the Levite, as long as thy love livest upon the earth, when the Lord thy God shall enlarge thy border as he hath promised thee, and thou shalt say, I will eat flesh, because thy soul longeth to eat flesh. Thou mayest eat flesh whatsoever thy soul lusteth after. If the place which the Lord thy God hath chosen to put his name there be too far from thee, then thou shalt kill of thy herd and of thy flock, which the Lord hath given thee, as I have commanded thee, and thou shalt eat in thy gates whatsoever thy soul lusteth after. Even as the roebuck and the hart is eaten, so thou shalt eat them, and eat them. The unclean and the clean shall eat of them alike. Only be sure that thou eat not the blood, for the blood is the life. And thou mayest not eat the life with the flesh. Thou shalt not eat it, thou shalt pour it upon the earth as water. Thou shalt not eat it, that it may go well with thee, and with thy children after thee, when thou shalt do that which is right in the sight of the Lord. Only the holy things which thou hast and thy vows thou shalt take, and go unto the place which the Lord shall choose. And thou shalt offer thy burnt offerings, the flesh and the blood, upon the altar of the Lord thy God, and the blood of thy sacrifices shall be poured out upon the altar of the Lord thy God, and thou shalt eat the flesh. Observe and hear all these words which I command thee, that it may go well with thee, and with thy children after forever, when thou doest that which is good and right in the sight of the Lord thy God. When the Lord thy God shall cut off the nations from before thee, whither thou goest to possess them, and thou succeedest them, and dwellest in their land, take heed
possess the land, take heed. Ribante Kaparaha, Saskin Barukushara Bakasiral Rubantra Kal Rubakasi, Zirabegatina Rabahambaruhushara Kasiral Rubantra Kasi. Thank you, Jesus. To thyself, that thou be not snared by following them, after that they be destroyed from before thee, and that thou inquire not after their gods, saying, how did these nations serve their gods? Even so will I do likewise. Thou shalt not do so unto the Lord thy God. For every abomination to the Lord which he hateth have they done unto their gods, for even their sons and their daughters they have burnt in the fire to their gods. What things soever I command you, observe to do it. Thou shalt not add thereto nor diminish from it. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 12 अध्याय BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। प्रभु की महानता, पहले वचन से, इसलिए तो अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका, अर्थात उसकी विधियों, नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना। और तुम आज यह सोच समझ लो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बाल बच्चों से नहीं कहता, जिन्होंने न तो कुछ देखा और न जाना है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने क्या क्या ताड़ना की और कैसी महिमा और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा दिखाई, और मिस्र में वहाँ के राजा फिरौन को कैसे कैसे चिन्ह दिखाए, और उसके सारे देश में कैसे कैसे चमत्कार के काम किए, और उसने मिस्र की सेना के घोड़ों और रथों में से क्या किया, अर्थात जब वे तुम्हारा पीछा कर रहे थे तब उसने उनको लाल समुद्र में डुबोकर किस प्रकार नष्ट कर डाला कि आज तक उनका पता नहीं, और तुम्हारे स्थान में पहुंचने तक उसने जंगल में तुमसे क्या क्या किया, और उसने रूबेनी एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम से क्या क्या किया, अर्थात पृथ्वी ने अपना मुंह पसार के उनको घरानों और डेरों और सब अनुचरों समेत सब इस्राएलियों को देखते देखते कैसे निगल लिया। परंतु यहोवा के इन सब बड़े बड़े कामों को तुमने अपनी आंखों से देखा है। प्रतिज्ञात देश की आशीषें, 8 वचन से आगे, इस कारण जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन सबों को माना करना, इसलिए कि तुम सामर्थी होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ, और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ जिसे तुम्हें और तुम्हारे वंश को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। देखो, जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वह मिस्र देश के समान नहीं है, जहाँ से निकल कर आए हो, जहाँ तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पाँव से नालियाँ बनाकर सींचते थे। परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो वह पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है, और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात की आदि और अंत दोनों समयों की
वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाखमधु और तट का तेल संचय कर सकेगा। और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन धोखा खाए और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो, और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वह आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज न दे, और तुम उस उत्तम देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओ। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे। और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना, इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहे। इसलिए यदि तुम इन सब आज्ञाओं के मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सब मार्गों पर चलो और उससे लिपटे रहो, तो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा और तुम अपने से बड़ी और सामर्थी जातियों के अधिकारी हो जाओगे। जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पाँव के तलवे पड़े वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे, अर्थात जंगल से लबानोन तक और परात नामक महानद से लेकर पश्चिम के समुद्र तक तुम्हारी सीमा होगी। तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा न रह सकेगा, क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे उस सब पर रहने वालों के मन में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उनमें डर और थरथराहट उत्पन्न कर देगा। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूँ, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा में मैं आज सुनाता हूँ उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर शाप पड़ेगा। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको उस देश में पहुँचाए जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है, तब आशीष गरिज्जिम पर्वत पर से और शाप एबाल पर्वत पर से सुनाना। क्या वे यर्दन के पार सूर्य के अस्त होने की ओर अराबा के निवासी कनानियों के देश में गिलगाल के सामने मोरे के बांज वृक्ष के पास नहीं है? तुम तो यर्दन पार इसीलिए जाने पर हो कि जो देश तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसके अधिकारी हो जाओ, और तुम उसके अधिकारी होकर उसमें निवास करोगे। इसलिए जितनी विधियाँ और नियम मैं आज तुमको सुनाता हूँ उन सबों के मानने में चौकसी करना। एक ही आराधना स्थल 12 अध्याय पहले वचन से। जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें अधिकार में लेने को दिया है उसमें जब तक तुम भूमि पर जीवित रहो तब तक इन विधियों और नियमों के मानने में चौकसी करना। जिन जातियों के तुम अधिकारी होंगे उसके लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, टीलों पर या किसी भांति के हरे वृक्ष के तले जितने स्थानों में अपने देवताओं की उपासना करते हैं उन सबों को तुम पूरी रीति से नष्ट कर डाला। उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनके आशेरा नामक मूर्तियों को आग में जला देना और उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियों को काट कर गिरा देना कि उस देश में से उनके नाम तक मिट जाए। फिर जैसा वे करते हैं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए वैसा न करना, किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा कि वहाँ अपना नाम बनाए रखे, उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना, और वही तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंट और मन्नत
की वस्तुएं और स्वेच्छा बलि और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे ले जाया करना, और वही तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने भोजन करना, और अपने अपने घराने समेत उन सब कामों पर जिनमें तुमने हाथ लगाया हो और जिन पर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की आशीष मिली हो आनंद करना। जैसे हम आजकल यहाँ जो काम जिसको भाता है वही करते हैं, वैसा तुम न करना। जो विश्राम स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे भाग में देता है, वहाँ तुम अब तक तो नहीं पहुँचे, परंतु जब तुम यरदन पार जाकर उस देश में जिसके भागी तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें करता है बस जाओ, और वह तुम्हारे चारों ओर के सब शत्रुओं से तुम्हें विश्राम दे और तुम निडर रहने पाओ, तब जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम के निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसी में तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंटें और मन्नतों को की सब उत्तम उत्तम वस्तुएं जो तुम यहोवा के लिए संकल्प करोगे, अर्थात जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ, उन सबों को वही ले जाया करना। और वहाँ तुम अपने अपने बेटे बेटियों और दास दासियों सहित अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करना, और जो लेवीय तुम्हारे फाटकों में रहे वह भी आनंद करे, क्योंकि उसका तुम्हारे संग कोई निज भाग या अंश न होगा। और सावधान रहना कि तू अपने होम बलियों को हरेक स्थान पर जो देखने में आए न चढ़ाना, परंतु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में यहोवा चुन ले वही अपने होम बलियों को चढ़ाया करना, और जिस काम की आज्ञा मैं तुझको सुनाता हूँ उसको वही करना। परंतु तू अपने सब फाटकों के भीतर अपनी जो जी की इच्छा और उस अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आशीष के अनुसार पशु मार के खा सकेगा। शुद्ध और अशुद्ध मनुष्य दोनों खा सकेंगे, जैसे कि चिकारे और हरिन का मांस, परंतु उसका लहू न खाना, उसे जल के समान भूमि पर उंडेल देना। फिर अपने अन्न या नए दाखमधु या टट के तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों या भेड़ बकरियों के पहलौठे और अपनी मन्नतों की कोई वस्तु और अपने स्वेच्छा बलि और उठाई हुई भेंटें अपने सब फाटकों के भीतर न खाना। उन्हें अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उसी स्थान पर जिसको वह चुने अपने बेटे बेटियों और दास दासियों के और जो लेवीय तेरे फाटकों के भीतर रहेंगे उनके साथ खाना। और तू अपने परमेश्वर यहोवा के सामने अपने सब कामों पर जिनमें हाथ लगाया हो आनंद करना, और सावधान रहे कि जब तक तू भूमि पर जीवित रहे तब तक लेवियों को न छोड़ना। जब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तेरा देश बढ़ाए और तेरा जी मांस खाना चाहे और तू सोचने लगे कि मैं मांस खाऊंगा, तब जो मांस तेरा जी चाहे वही खा सकेगा। जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन ले वह यदि तुझ से बहुत दूर हो, तो जो गाय बैल भेड़ बकरी यहोवा ने तुझे दी हो उनमें से जो कुछ तेरा जी चाहे उसे मेरी आज्ञा के अनुसार मार के अपने फाटकों के भीतर खा सकेगा। जैसे चिकारे और हरिन का मांस खाया जाता है वैसे ही उनको भी खा सकेगा। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के मनुष्य उनका मांस खा सकेंगे, परंतु उनका लहू किसी भांति न खाना, क्योंकि लहू जो है वह प्राण ही है, और तुम मांस के साथ प्राण कभी भी न खाना। उसको न खाना, उसे जल के समान भूमि पर उंडेल देना, तो उसे न खाना। इसलिए कि वह काम करने से जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी भला हो। परंतु जब तू कोई वस्तु पवित्र करे और मन्नत माने, तो ऐसी वस्तुएं लेकर उस स्थान की को जाना जिसको यहोवा चुन लेगा, और वहां अपने होम बलियों के मांस और लहू दोनों को अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी पर चढ़ाना, और मेल बलियों का लहू उसकी वेदी पर उंडेल कर उनका मांस खाना। इन बातों को जिनकी आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूँ चित्त लगाकर सुन, कि जब तू वह काम करे जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक है, तब तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी सदा भला होता रहे। मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी।
29 वचन से आगे, जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को जिनका अधिकारी होने को तू जा रहा है तेरे आगे से नष्ट करे और तू उनका अधिकारी होकर उनके देश में बस जाए, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि उनका सत्यानाश होने के बाद तू भी उनके समान फंस जाए। अर्थात यह कहकर उनके देवताओं के संबंध में यह पूछताछ न करना कि उन जातियों के लोग अपने देवताओं को की उपासना किस रीति करते थे, वे मैं भी वैसे ही करूँगा। तो अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा व्यवहार न करना, क्योंकि जितने प्रकार के कामों से यहोवा घृणा करता है और बैरभाव रखता है, उन सबों को उन्होंने अपने देवताओं के लिए किया है। यहाँ तक कि अपने बेटे बेटियों को भी वे अपने देवताओं के लिए अग्नि में डालकर जला देते हैं। जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूँ उनको चौकस होकर माना करना, और न तो कुछ उनमें बढ़ाना और न उनमें से कुछ घटाना। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें इन वचनों के अधीन लाया, हमें फिट एंड फिक्स किया, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लाया। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर गॉड। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमारा धन्यवाद बलिदान स्वीकारने की हम विनती करते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। रिबांति खंब हुसी लरबहा अकासे कंबहुशर अकासिरा लरबहुस। Two years Bible reading plan, Acts 28 chapter 21 verse से 31 वर्ष तक, Psalms 83 चैप्टर 84 चैप्टर। प्रेरितों के काम 28 अध्याय 21 वचन से 31 वचन तक, भजन संहिता 83 अध्याय 84 अध्याय। हम अकेले में बैठकर इन वचनों को अध्यायों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसा फैसला किया है जब व्यक्तिगत समय में पर्सनल टाइम में अकेले में बैठकर इन अध्यायों को हम पढ़ेंगे तो ये परमेश्वर जो हमको वचन में से सुधार देना चाहता है हम उसे स्वीकार पाएंगे। ज़रूरी नहीं सभी ने इस प्रकार से अकेले में बैठकर पढ़ना है। आपको जैसा परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे वैसे आप पढ़ सकते हैं। हम निश्चित यही करना है, परमेश्वर के आत्मा ने हमको वचन सिखाना है और परमेश्वर का आत्मा का हमने लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमेन आमेन आमेन। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमेन आमेन आमेन।